You're going to walk in blessing. आप You're आशीषों going में to जिएंगे, prosper. You're going to समृद्ध grow. होंगे, Your बढ़ेंगे, children will prosper. आपके बच्चे समृद्ध होंगे। Why? कैसे? क्यों? Because you have limited Satan. क्योंकि आपने शैतान को सीमित कर दिया। हालेलुया। Praise God. Praise प्रभु का God. धन्यवाद हो। Are you excited? आप उत्साहित हैं? Can we just worship the Lord? Just lift up your क्या हम hands उसकी wherever you आराधना कर are. सकते हैं कुछ समय? अपने हाथों को उठाए जहाँ कहीं भी आप हैं। Just say, Jesus, talk to me this कहें यीशु morning. मुझसे आज सुबह बात करें। Talk to me this morning, आप Lord. मुझसे इस सुबह बात करें प्रभु। I'm ready. मैं तैयार हूँ। I have come to receive your word. आपके वचन को मैं ग्रहण करने के लिए आया हूँ। Because your word carries life. क्योंकि आपके वचन में जीवन है। Your word is alive and powerful. आपका वचन जीवित और शक्तिशाली है। Come on, in your own words, talk to अपने him खुद this के morning. शब्दों में। Hallelujah. Amen. Amen. Father, we worship you. 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 Spirit of the living God. जीवित परमेश्वर की Spirit of the living God. आत्मा, जीवित परमेश्वर की आत्मा, We welcome you in this place. हम आपका स्वागत करते हैं इस Do जगह। what you want to do, Holy जो आप Spirit. करना चाहते हैं वो यहाँ करें। This is your church. ये आपकी कलीसिया है। You are the leader of this आप church. इस कलीसिया के अगुवे हैं। We surrender our schedules, our plans, whatever we have planned at your feet, Jesus. अपने स्केड्यूल जो कुछ हमने योजनाएं बनाई हैं वो आपके कदमों में रख देते हैं यीशु। Do what you want to do. जो आप करना चाहें करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Okay, tell your neighbor that this message is for me. अपने पड़ोसी से कहें ये संदेश मेरे लिए है। Amen. You all can be seated, please. आप सब बैठ सकते हैं। We are so thankful for what the Lord is doing in our midst. हम बहुत धन्यवादित हैं जो प्रभु हमारे बीच में कर रहे हैं। So many healing testimonies. इतनी सारी चंगाई की गवाहियां। Mute are speaking, deaf are hearing, cancers are being healed. बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं। The same Jesus क्योंकि वही यीशु who was healing people in Nazareth is the same Jesus who heals people now. जो नाजरत में बीमारों को चंगा कर रहा था वही यीशु आज भी अपने लोगों को ठीक करता फिरता है। Amen. Because we don't serve a dead God. क्योंकि हम मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। We serve a God who is alive. हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। Amen. The message that I want to share today is my miracle is in my mouth. जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि मेरा चमत्कार मेरे मुंह में है। And your miracle is in your mouth. और आपका चमत्कार आपके मुंह में है। Amen. The Bible says that the power of life and death is in our tongue. बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य हमारे जुबान के वश में है। So your tongue is the greatest prophet you have access to. आपकी जुबान सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता है जिससे आप जब चाहे मिल सकते हैं। You can prophesy life, आप जीवन की भविष्यवाणी कर or you can prophesy death. या आप मृत्यु की भविष्यवाणी कर You सकते can हैं। prophesy blessings, आप आशीषों की or भविष्यवाणी you कर can सकते हैं prophesy curses. या श्रापों की भविष्यवाणी। You can prophesy victory, आप जय की भविष्यवाणी or कर you सकते can हैं prophesy defeat. या आप हार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं कलीसिया? Amen. Remember the rule. नियम याद है? Remember the rule? नियम याद है? Okay, now I can see you smiling. Smile at the preacher प्रचारक की ओर देखकर मुस्कुराएं। and respond to the word. और दूसरा नियम है वचन को जवाब दें। Amen. आमेन। I pray there would be word responders in this church. मैं प्रार्थना करता हूं कि वचन को जवाब देने वाले लोग हों इस कलीसिया में। The most underrated organ in our body is tongue. हमारे शरीर में जो सबसे छोटा सबसे तुच्छ अंग जाना जाता है माना जाता है वो ज़बान है। We usually don't pay attention to it. We think tongue is just for tasting food. कोई ध्यान नहीं देता अक्सर जुबान पर, हमें लगता है सिर्फ खाना चखने के लिए है वो।
But Bible is saying that the tongue is powerful. लेकिन बाइबल कह रही है जुबान शक्तिशाली है. Your tongue carries the power to change the very course of your life. आपकी जुबान में वो क्षमता है कि आपके जीवन की दिशा बदल दे. Amen. Apostle James compares tongue to rudder of huge massive ships. याकूब प्रेरित जुबान की तुलना करते हैं एक बड़ी नाव की पतवार से. And he's like, how these huge ships, their course, they are being turned towards right or left through the small rudder. He's like, in the same manner, we can control our entire body. You can change the very course of life by your tongue. और वो बताते हैं कैसे इतने बड़े जहाज, इतने विशाल जहाज़ों का रुख मोड़ दिया जाता है एक छोटे से पहिए जैसे दिखने वाले अंग से. वैसे ही हमारी जुबान वो छोटा सा अंग है जिसके द्वारा हमारे जीवन का रुख बदल जाता है. Or I can say that your tongue is like the paintbrush and your life is like a canvas. या मैं ऐसा कहूँ कि आपकी जुबान जो है वो एक पेंट ब्रश है और आपका जीवन एक पेंट करने के लिए कपड़ा है. See, so many times we have stressed so much. There is an unhealthy stress in the sovereignty of God where we do not take responsibility for the words that we are sowing in our own life. हमने कई बार परमेश्वर की जो इच्छा है उस बात को इतना बड़ा कर दिया कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा क्या योगदान है हमारे जीवन में जो होता है उसमें. But if you remember, I have taught you God's sovereignty. लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था परमेश्वर की जो इच्छा है उसकी जो सुइच्छा है And man's responsibility. साथ ही मनुष्य की जिम्मेदारी. Say God's sovereignty. कहें परमेश्वर की सुइच्छा And man's और responsibility. मनुष्य की जिम्मेदारी. So I'm like, oh brother, कुछ लोग कहते हैं भाई God, if He wants to do anything in my life, He will do it. अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ करना चाहे तो कर दे. No, God is seeking for your partnership. नहीं, परमेश्वर को आपकी संगति, आपकी सहभागिता चाहिए उसको करने के लिए. Amen. I think one thing we believers we have to learn is that many times we think prayer is like magic. एक बात जो हम विश्वासियों को सीखने जरूरी है, कई बार वो ये है कि हम सोचते हैं प्रार्थना जादू के जैसी है. So we think we have prayed and we have done our part. तो हमें लगता है हमने प्रार्थना कर ली, अपना काम खत्म कर लिया. That is good. वो अच्छा है. But if you have prayed and you are speaking contrary to that prayer, don't expect that you're going to get that prayer answered. लेकिन अगर आपने प्रार्थना एक की और उसके विपरीत बोलते चले गए तो ये अपेक्षा ना करें कि प्रार्थना के मुताबिक आपको परिणाम मिलेंगे. Hear this. ध्यान से सुनना. You're praying आपकी प्रार्थना and your saying should align. आपकी प्रार्थना और आपकी बातें मिलनी चाहिए. If you're praying east and you are speaking west, अगर आप प्रार्थना उत्तर की कर रहे हैं और बातें दक्षिण की कर रहे हैं, you're wasting your time. अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. You have a part to play आपका योगदान है in your miracle. अपने चमत्कार के लिए. Whatever you want God to do in your life, जो कुछ आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में करे, you have a part to play. उसमें आपका योगदान है. And so many times people, oh brother, God is testing me. कई बार लोग कहते हैं अरे भाई परमेश्वर मेरा इम्तिहान ले रहे हैं. Oh, it's been so long. ओ इतना समय बीत गया. But we don't understand that many times we are delaying. Come on. लेकिन हम नहीं समझते कई बार हम ही उस देरी का कारण होते हैं. So a 11 days journey जो 11 दिन की यात्रा थी from Egypt to the land of Canaan can become 40 years. मिस्र से निकलकर कनान देश तक पहुंचने की जो 11 दिन की यात्रा थी वो 40 साल की बन गई. Why? क्यों? Is of the big mouth of Israelites. इजराइलियों के बड़े मुंह के कारण. They kept grumbling, वो बुड़बुड़ाते रहे, speaking against what God was doing. जो परमेश्वर कर रहा था उसके विपरीत बोलते रहे. Amen. Say, I have a part to play. बोले मेरा हिस्सा है. Prayer is not magic. प्रार्थना जादू नहीं है. Prayer is an invitation for partnership. प्रार्थना एक बुलाहट है, एक आमंत्रण है परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने के लिए. Prayer is when heaven and earth works together. प्रार्थना है जब स्वर्ग और पृथ्वी साथ मिलकर कुछ करते हैं. Amen. So our words, हमारे मुंह के वचन are very powerful. बहुत शक्तिशाली हैं. So many us have reaped what we have been sowing
for decades. हम में से बहुतों ने अपने जीवन में वही भुगता है जो हम कई दशकों से बोलते चले आए। We have been sowing those seeds and we don't realize it. हम वो बीज बोते चले आए जिसका हमें ध्यान भी नहीं था। So many people are sowing those seeds for their children, for their family, their health. बहुत से लोग अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य के लिए वो बीज बो रहे हैं। You know, in the spirit realm, आत्मिक दुनिया में words are like containers. वचन बर्तनों की तरह होते हैं। Words, they carry spirit, they carry life or death. वचन एक बर्तन की तरह है जिसमें एक आत्मा, जीवन या मृत्यु वास करता है। So words are not just words. वचन खाली वचन नहीं, खाली बातें नहीं है। Amen? Words are not just words. वचन खाली बातें नहीं है। Guys, are you with me? आप मेरे साथ हो? Jesus said in John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। Words carry spirit. वचन एक आत्मा को लेकर चलते हैं अपने ऊपर। So be very careful तो बहुत ध्यान देना what you hear. आप जो सुनो। When you come under somebody, when you're hearing something, you are not just hearing words, but you're coming under that spirit. जब आप किसी की बातों के अधीन, जब किसी की बातों के प्रति आप समर्पित होते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, तो केवल उनकी बातें नहीं, लेकिन जो आत्मा है उनके वचनों पर, उसके अधीन होते हैं। Amen? Let's see the scripture. Isaiah 57:19, and we'll see the first part of this verse. यशायाह 57 उसके 19 का पहला भाग हम देखेंगे। I create the fruit of the lips. मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। I create the fruit of the lips. मैं मुंह के फलों, होठों के फलों का सृजनहार हूं। God is saying परमेश्वर कह रहा है that He is the creator of the fruit of your lips. कि वो रचना करने वाला है आपके मुंह के होठों के शब्दों के फलों का। Whatever is coming out of your mouth. जो कुछ आपके मुंह से निकलता है। But you know, so many believers, God wants to do so much in their lives, but He gets limited. बहुत से विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर इतना कुछ करना चाहता है लेकिन उसको सीमित रहना पड़ता है। God gets limited. परमेश्वर को सीमित रहना पड़ता है। Let me ask you a question. मैं आपसे पूछता हूँ, Can we limit God? क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Some people are yes, some people are no. कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। Yes. हाँ, Not only we can limit God, the reality is all of us are limiting God right now. इतना ही नहीं कि हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं, असलियत तो यह है कि हम सब के सब किसी ना किसी रीति से परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं। All of us are limiting God. हम में से हर कोई परमेश्वर को सीमित कर रहा है। Because whatever you think, God wants to do much more than that. क्योंकि जो कुछ आप सोचते हैं परमेश्वर से कई ज्यादा बढ़ के करना चाहता है। Whatever you are asking from God, God is well able to do so much more than that. जो कुछ आप परमेश्वर से मांग रहे हैं परमेश्वर ये क्षमता रखता है कि वो उससे कई गुना बढ़कर आपके लिए कर दे। Let's see the scripture. Psalm 78 verse 41. भजन 78 उसकी 41वीं आयत हम देखते हैं साथ मिलकर। Again and again they limited God. वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा, परमेश्वर को सीमित करते रहे, preventing him from blessing them. और उसे उन्हें आशीषित करने से रोकते रहे। Are you with me? आप मेरे साथ हो? God has already blessed every believer in the heavenly places in Christ Jesus. परमेश्वर ने मसीह यीशु में आत्मिक स्थानों में हम सबको, हर एक विश्वासी को आशीषें दे दी हैं। But it's like so many believers have put roadblocks. लेकिन ऐसा है जैसे बहुत से विश्वासियों ने रास्ते में रुकावटें रख दी हैं। You know, they are preventing God from God wants to bless them, God wants to heal them, God wants to prosper them, but they have put these roadblocks and it is preventing God to bless them. परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा करना चाहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है जैसे उन्होंने खुद अपने जीवन के खिलाफ रुकावटें लगाई हुई हैं। Amen. See, in the grace of God, everything is given freely in the kingdom. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके कारण राज्य में सब कुछ मुफ्त मिलता है। Amen. We don't earn it. हम उसको कमा नहीं सकते।
But we can put roadblocks which can prevent God from blessing us. लेकिन उस पर वो रुकावटें हम डाल सकते हैं जो परमेश्वर को रोक दें कि वो हमें आशीषित करे। I know it sounds little offensive to religious mind. मैं जानता हूँ धार्मिक बुद्धियों को ये बहुत नाराज करने वाली बात लगेगी। What are you saying? क्या कह रहे हो आप? Man, God can do whatever He wants to do. परमेश्वर जो चाहे कर सकता है। No, the Bible says it is not God's will that anyone should perish, but people perish every day. नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो, लेकिन लोग हर दिन नाश होते हैं। Just because it's God's will doesn't mean it will happen automatically. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर कुछ चाहता है तो अपने आप नहीं होगा वो। You will have to say yes and you will have to agree to His will. आपको हाँ बोलना सीखना पड़ेगा जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में हो उसके लिए। Amen, church? आमेन। You'll have to agree to His will. आपको परमेश्वर की इच्छा के साथ सहमत होना सीखना पड़ेगा। So the Bible is saying for Israelites that not one time, again and again. बाइबल इजरायलियों के लिए कह रही है एक दफा नहीं लेकिन बार बार वो परमेश्वर को रोकते रहे कि In fact, for 40 years. यहाँ तक कि 40 साल तक। Can you imagine? 40 years, God was so patient with them. God wanted to bless them. God wanted to prosper them. God wanted to take them to a land of abundance. But for 40 years, they kept rebelling. They kept preventing God from blessing them. क्या आप कल्पना कर सकते हैं 40 साल तक परमेश्वर बार बार उन्हें आशीष देना चाहता था लेकिन वो बार बार परमेश्वर के विरोध में आते रहे, परमेश्वर की इच्छा को रोकते रहे, उसको सीमित करते रहे। They say, man, these stupid Israelites. और वो कहता है ये बेवकूफ इजरायली। And we don't realize sometimes we behave like them. और हम ये ध्यान नहीं देते कि हम भी कई बार उनकी तरह ही व्यवहार करते हैं। For 40 years. 40 साल। There are some believers who are singing the same song for 40 years. कुछ विश्वासी 40 साल से वही गाना गा रहे हैं। They keep on changing churches. They keep on changing so many things, but they don't change their words. जीवन में कलीसियाएं बदली, बहुत कुछ बदल लिया लेकिन मुंह की बातें नहीं बदली अभी तक। Can I speak the truth to you? मैं हकीकत कह सकता हूं आपसे। Amen? Without offending you? बिना आपको नाराज किए सच कह सकता हूं। Yeah? If you get offended, we'll give you a free coffee. अगर नाराज हो गए तो मुफ्त कॉफी देंगे हम आपको। Okay. Continually, they turned back from him and provoked the Holy One of Israel. बार बार वो उसकी ओर पीठ फेर कर परमेश्वर को नाराज करते रहे, उसको क्रोधित करते रहे। I just want you to imagine this. For 40 years, 40 years is not a small time. मैं चाहता हूं आप कल्पना करें 40 साल छोटा समय नहीं होता। For 40 years, God was patient with them, again and again trying to do it for them, but they kept limiting him for 40 years. 40 साल तक वो परमेश्वर उनके साथ संयम धरे हुए उनके साथ रहा, चलता रहा, लेकिन वो उसको बार बार उसका विरोध करते रहे, उसको रोकते रहे। I want you to think this right now. मैं चाहता हूं कि इस समय आप ये सोचें, Am I limiting God right now? क्या मैं इस समय परमेश्वर को सीमित कर रहा हूं? Are there areas in my life where I am limiting him? क्या मेरे जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैंने परमेश्वर को सीमित किया हुआ है? And I am blaming him that he is not doing something for me when in reality I am limiting him? और क्या उन क्षेत्रों के लिए मैं परमेश्वर पे दोष लगा रहा हूं कि वो कुछ नहीं कर रहा मेरी जिंदगी में, जबकि असलियत यह है कि मैंने उसको रुकावटें रखी हुई हैं उसके सामने। But how did they limit God? लेकिन कैसे इजरायलियों ने परमेश्वर को सीमित करा? Verse 40. 40वीं आयत। How many times they rebelled in their desert days? कितनी दफा वो उस रेगिस्तान मुरस्थल के समय में उसके विरोध में आते रहे। Wilderness is not God's will for you. वो मरुस्थल, वो बंजर स्थान परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए। Did you hear what I said? सुना आपने मैंने क्या कहा? Wilderness, somehow some Christians are so, like they take pride. I am in a wilderness season. वो जो सूखा जीवन है, सूखा जो स्थान है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए। कई बार कई विश्वासी लोग बहुत गर्व से ये बात कहते हैं कि मैं अपने जीवन में उस विल्डरनेस, उस जंगल से निकल रहा हूँ। Let me say it again. मैं I दोबारा think कहता you हूँ। guys are not getting it today. शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। Wilderness is not God's will for you. The land that flows with milk and honey is God's will for you. वो मरुस्थल
परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके जीवन के लिए एक ऐसी भूमि जो जिसमें दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, वो है परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए। God didn't say, I'm going to bring you out of Egypt so that I will keep you in wilderness. परमेश्वर ने ये वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें मिस्र से निकालूंगा ताकि तुम्हें मरुस्थल में रखूं। Wilderness season is only a momentary season where you're learning to trust God, but the moment you learn to trust Him, you enter. The Bible says those who have believed, they have entered the rest. वो मरुस्थल का समय क्षण भर का है जहां पर आप ये सीखते हैं कि मैं परमेश्वर पे भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि जिस घड़ी आपने परमेश्वर पे भरोसा कर लिया, आपने कदम बढ़ा करके उस भूमि में प्रवेश कर लिया जो वायदे की भूमि आपको दी गई। Come on, turn to your neighbor, say, neighbor, अपने पड़ोसी को कहे, पड़ोसी come out of wilderness. उस मरुस्थल से बाहर आ जाओ। Enter Canaan. कनान देश में प्रवेश कर लो। Those who believed have entered the rest. वो जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया। My Bible does not say that the Lord is my shepherd, He leads me in the paths of wilderness. मेरी बाइबल ये नहीं कहती कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे मरुस्थल में ले जाता है। My Bible says because the Lord is my shepherd, He leads me in the paths of righteousness. मेरी बाइबल कहती है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे धार्मिकता में चलाता है। He leads me to green pastures. वो मुझे हरी चराइयों में ले जाता है। Abundance. बहुत आयत। Abundance. बहुत आयत। Abundant. Church. कलीसिया। Abundance is not a bad word. बहुत आयत बुरा शब्द नहीं है। Blessing is not a bad word. आशीष बुरा शब्द नहीं है। Healing is not a bad word. चंगाई बुरा शब्द नहीं है। It's your Father's will that you walk in health and you prosper in every area of your life. ये आपके पिता की इच्छा है कि आप अच्छे स्वास्थ्य में जिएं और जीवन के हर एक क्षेत्र में समृद्ध हों। Amen. So don't limit God. इसलिए परमेश्वर को सीमित ना करें। But how were they limiting Him? लेकिन कैसे वो उसको सीमित कर रहे थे? How many times they rebelled in their desert days? Well, I like this, desert days. कितनी बार उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, उसके विरोध में आए अपने मरुस्थल के दिनों में। I pray that your desert days will change to milk and honey days. Amen. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके वो मरुस्थल के दिन दूध और शहद की धाराओं के दिनों में बदल जाएं। Some be like, you don't understand, Pastor. God is trying to teach me in desert days. कुछ लोग कह रहे हैं, पास्टर आपको समझ में नहीं आया, परमेश्वर मुझे सिखाना चाह रहा है मरुस्थल के दिनों में। He wants to teach you in Canaan. परमेश्वर आपको कनान देश में सिखाना चाहता है। He wants to teach you when you're lying in green pastures. वो आपको तब सिखाना चाहता है जब आप हरी चराइयों में लेटे हुए हैं। He wants to teach you when constantly you're not aware that my landlord is coming to take the rent and I have no money for rent. वो आपको सिखाना चाहता है उस जगह ले जाकर जहां आप बार बार इस बारे में नहीं सोच रहे कि मेरा मकान मालिक आने वाला है, किराया देना पड़ेगा, कहां से लाऊं। There's no good fruit of lack. There is no good fruit of sickness. कमी का कोई अच्छा फल नहीं निकलता, बीमारी का कोई अच्छा फल नहीं निकलता जीवन में। And I always say, some people are like, brother, God humbles us through the sickness. Have you met sick people? और मैं हमेशा कहता हूं लोगों से जो कहते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है नम्र करने के लिए, कभी किसी बीमार से मिले हो? They are not humble. वो बिल्कुल नम्र नहीं होते। In fact, when you get sick, you are not humble. बल्कि जब आप बीमार होते तो आप भी बिल्कुल नम्र नहीं होते। Amen. God wants to talk to you in stillness where your mind is completely occupied by Him. परमेश्वर आपसे उस जगह ले जाकर बात करना चाहता है जहां आप स्थिर हैं, आपका मन पूरी तरह उस पर लगा है। How they grieved Him with their grumblings. कैसे उन्होंने परमेश्वर को दुखित किया, शोकित किया अपने बुड़बुड़ाने के द्वारा। They were limiting God by their grumblings. वो परमेश्वर को सीमित कर रहे थे अपने शिकायतें लगाने के कारण। How many believers have grieved God
with their grumblings. कितने विश्वासियों ने परमेश्वर को सीमित किया है अपनी शिकायतों के कारण। What has Jesus done for me? यीशु ने मेरे लिए क्या किया? Cross. क्रूस। We don't need any proof. और कोई सबूत नहीं चाहिए। He was stripped naked for us. वो हमारे लिए नंगा कर दिया गया। Went on the cross for you and me. क्रूस पर आपके और मेरे लिए गया। But somehow it's very quickly we forget the goodness of God. Isn't it true? लेकिन पता नहीं क्यों हम बहुत ही जल्दी परमेश्वर की भलाई, उसकी अच्छाई को भूल जाते हैं। सच नहीं है ये बात? And so many times people start grumbling. One thing, God does so many things for you. One thing you don't get how you wanted it, when you wanted it, bam, comes a grumbling song. बहुत बार परमेश्वर इतना कुछ हमारे लिए करता है, लेकिन जैसे ही एक चीज नहीं होती है, कुड़कुड़ाने का गाना शुरू हो जाता है हमारी जिंदगी से। How many times they grieved God कितनी दफा उन्होंने बार बार परमेश्वर को शोकित किया with their grumblings. अपने कुड़कुड़ाने से। And I think grumblings happen when we forget the goodness of God. और शायद हम इसीलिए कुड़कुड़ाते हैं जब हम भूल जाते हैं परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में। That's why every day, see, that's why praying is like, oh God, oh hallelujah, 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 God do this. We have, it's not a spiritual gymnastics. It has to do with your heart. The prayer, a true prayer is born out of a grateful heart. इसीलिए हर दिन प्रार्थना करना वो एक आदत की तरह, हालेलुया हालेलुया करना, प्रार्थना करना कोई आत्मिक कसरत नहीं जो आप कर रहे हैं, लेकिन जो असली प्रार्थना है वो एक सच्चे दिल से उठती है। See, that's why I tell so many people, prayer is not like rubbing a lamp. प्रार्थना करना एक चिराग को घिसने जैसा नहीं है। If I rub it long enough, अगर बहुत देर तक इसको घिसता रहा मैं, Holy Spirit is going to come. तो पवित्र आत्मा आएगा। हा 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 हा। What do you want, my son? क्या चाहिए मेरे बेटे? That doesn't happen. ऐसे काम नहीं करता है। We enter. You know, it's like when you thank God, when you're aware of Him. जब हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लिए सहनशील हैं, उसके लिए When धन्यवाद you're देते हैं। so aware of His goodness. जब उसकी भलाई हमारे जीवन में जो है उसको हम जानते हैं, That's a true prayer of faith. तो वो एक सच्ची विश्वास की प्रार्थना है, Because you remember His goodness. क्योंकि आपको याद है उसकी भलाई। Here in this psalm, if you read later, the Bible says these people grumbled because they forgot all the good works that God did for them. इस भजन में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि क्योंकि ये लोग भूल गए थे वो सारी अच्छी बातें, वो सारे बड़े काम जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किए थे। Bless the Lord, O my soul, यहोवा and को धन्य कहे। all that is within me. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। You need to tell yourself, अपने आप को बताना पड़ेगा आपको। hey, हे body, शरीर, soul, प्राण, you will not be an ungrateful son. तू धन्यवादहीन नहीं होगा अपने You'll जीवन में। never forget the goodness of your father. कभी अपने पिता की भलाई को तू नहीं भूलेगा। You're going to praise him. Even when you don't feel like praising him, you'll praise him because you'll remember how good your father has been to you. तू उसका धन्यवाद देगा, चाहे कुछ भी हो तो उसका धन्यवाद देगा, क्योंकि तुझे याद है कि वो तेरे लिए कितना भला रहा है। Amen. I think we all should have a time wherein you don't pray, but you just sit in stillness and remember the goodness of your father. मैं सोचता हूँ हम सबकी ज़िंदगी में हमें ऐसा समय निकाल के रखना चाहिए जहाँ पर हम प्रार्थना ना करें, लेकिन बस बैठे विश्राम में और अपने पिता की भलाई याद करें जो उसने हमारी ज़िंदगी में की है। Amen. Deep calls out to deep. हमारे दिल की गहराई उसकी दिल की गहराई को पुकारते हैं। When you're just in his presence, जब आप उसके सामने उसकी उपस्थिति में हैं, then you'll realize that he has done so much for you that you can thank him for 1 trillion years and still you'll have this thanksgiving coming out of your heart continually. तब आपको समझ में आएगा कि अगर सैकड़ों करोड़ों साल तक भी धन्यवाद कहते रहे तब भी धन्यवाद कहने को और मन करेगा। Can you imagine, just I want you to think about that person whom you loved, you did so much for them and they were so ungrateful. मैं चाहता हूँ आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आपने बहुत प्यार किया, उनके लिए सब कुछ करना चाहा, लेकिन उन्होंने कभी भी उस बात का ध्यान नहीं किया, हमेशा नज़रअंदाज किया आपके प्यार को। And children of Israel, 40 years, और इज़राइल के लोग 40 साल तक
God loved them, tenderly brought them out of Egypt. परमेश्वर ने उनसे प्यार किया, बहुत नम्रता से प्यार से उनको मिस्र से निकाल के ले आया. But all throughout the journey, they kept grumbling. पूरी यात्रा भर वो कुड़कुड़ाते रहे. To God and to Moses. परमेश्वर के लिए और मूसा के लिए. अरे इसीलिए ले आया हमें. Is that why you brought us out? Right? And I want all of us to maybe check our heart and see what happens when pressure comes in our life. What kind of words come out of our mouth? और मैं चाहता हूँ हम में से हर कोई अपने दिल को जांचे कि जब जिंदगी में तनाव और दबाव आता है तो हमारे दिल से कैसी बातें निकलती हैं. Hear this. ध्यान से सुनना. If you keep focusing on what's wrong, अगर आपका ध्यान इस बात पर होगा कि क्या गलत है, and will there be things that would be wrong? Yes. और क्या चीजें होंगी जो गलत होंगी? हाँ. Sometimes your AC won't work. कभी एसी काम नहीं कर रहा. But thank God that you have an AC. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एसी तो है आपके पास. Amen. Amen. Sometimes you'll have problem in your house, but thank God that you have a house. कभी घर में कुछ दिक्कत हो गई है, पर धन्यवाद है घर तो है आपके पास. Sometimes your landlord harasses you, but thank God that God has blessed you that you can pay rent every month. कई बार किसी को लैंडलॉर्ड कठोर मिलता है जो परेशान करता है, पर प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर ने आपको ये योग्यता दी कि आप किराया चुका पाएं. But that's what the enemy wants. Enemy wants to take your awareness which was supposed to be on him, and the enemy wants to take your awareness and put it on trivial things in life. लेकिन ये है जो दुश्मन चाहता है, आपका जो ध्यान परमेश्वर पर लगा होना चाहिए उसको छीन करके ऐसी बातों पर जो फजूल में आपका समय बर्बाद कर दे उन पर. Some people are so occupied by things that doesn't mean a thing. कई लोग ऐसी बातों में इतने व्यस्त हैं जिनकी कोई कीमत ही नहीं है उनके लिए. Their mind is completely occupied by trivial things. उनका मन पूरी तरह घिरा हुआ है ऐसी फजूल की बातों में. अरे पेट्रोल कितना महंगा हो गया. All the time they want to talk about things that doesn't matter. हर समय उनको वो बातें करनी है जिनका कोई फायदा ही नहीं है. And then they say, Pastor, anxiety. और फिर कहेंगे अरे पास्टर जी बहुत परेशानी है. Obviously, if you keep focusing on what's wrong, guess what's the fruit of that? You will feel anxiety. अगर हमेशा उन बातों के बारे में सोचेंगे जो गड़बड़ाई हुई हैं, जो गलत हैं, तो क्या होगा उसका परिणाम? परेशान होंगे. But the Bible says you will keep them. It's not our job to be at perfect peace. God will keep us in perfect peace if we just keep our mind stayed on His goodness. लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनको एक सही बुद्धि, एक शांति भरी बुद्धि देगा. हमारा काम नहीं अपने दिमाग को शांत बनाए रखना. Amen. Can I say that again? दोबारा कहूं. The word of God says परमेश्वर का वचन कहता है you will keep them in perfect peace. तू उन्हें सिद्ध शांति में बनाए रखेगा. The word doesn't say we have to somehow attain perfect peace. No, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि हमें प्रयास करके किसी तरह से वो सिद्ध शांति हासिल करनी है, प्राप्त करनी है. Soul, you have to attain peace. No. प्राण, भीतरी शांति. No. We don't attain peace. Our Father gives us peace. हम शांति प्राप्त नहीं करते, हमारा पिता हमें शांति देता है. Jesus said, "My peace I give to you." यीशु ने कहा अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं. Amen. Amen. You don't have to do anything for that peace. It's a gift. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उस शांति के लिए, वो तोहफा है. But if you keep your mind on all these things, what's wrong? लेकिन अगर आपका मन इन सारी बातों पर लगा रहेगा जो गड़बड़ाई हुई हैं. You know, some people have this gift. They are anointed for it. कई They are anointed for grumbling. कई लोगों के पास ये वरदान है, वो अभिषिक्त है शिकायतें लगाने के लिए. They can go to the best place and find what's wrong in that place. वो दुनिया की सबसे अच्छी जगह जाकर के भी गलतियां निकाल सकते हैं कि क्या खराबी है यहाँ पर. They'll go to office. ऑफिस दफ्तर जाएंगे. You know what I mean? आप समझ रहे हैं मैं कह रहा हूँ. They'll go to a wedding. शादी में जाएंगे. रसगुल्ले हार्ड थे, पनीर रबड़ जैसा था. You know, they have gift. They can never be thankful.
उनके पास ये वरदान है कि वो कभी धन्यवाद हो ही नहीं सकते। Just find out what's wrong. बस क्या दिक्कत है वो पता कर लेंगे। And that's an Israelite mentality. और ये इजरायलियों की मानसिकता है। Guess what? That grieves our Heavenly Father's heart. और अंदाजा लगाओ, यही बात है जो हमारे स्वर्गीय पिता को दुख पहुंचाती है। But you know what? If you become aware of that thing and if you stay it for a few minutes or hours, it is going to affect your mood. Please hear carefully what I'm saying. लेकिन अगर आप इस आदत में बने रहे और ऐसा करते रहे तो आपके मूड, आपके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ। If you stay there for a few hours, it is going to affect your mood. अगर कुछ घंटे ऐसे वातावरण में बने रहे तो आपका मूड इससे खराब होगा। Some people will come and say, "What's wrong?" कुछ लोग कहेंगे, बोलेंगे क्या दिक्कत है? Don't feel like talking. अरे यार बात करने का मन नहीं है। It has affected your mood. आपका मूड खराब हो गया उसके But बाद। if you stay in that kind of grumbling attitude for days, it becomes your temperament. लेकिन अगर ऐसे वातावरण में, ऐसे मानसिकता में आप जिए कई दिनों तक, तो वो आपका चरित्र का हिस्सा हो जाता है। And if you stay there for longer, it is going to become your nature. और अगर आप लंबे समय तक ऐसे ही चलते रहे, जीते रहे, तो वो आप बन जाएंगे। So from grumbling, you're going to become a grumbler. सो कुड़कुड़ाने से आप कुड़कुड़ाने वाला बन जाएंगे। You didn't hear what I said. सुना नहीं आपने मैंने जो कहा। From grumbling, see, we all of us are guilty of it. We all have grumbled in some area. शिकायत But there's a big difference between grumbling and a grumbler. हम सब ने किया है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात की शिकायत लगाई होगी अपनी जिंदगी को लेकर, लेकिन एक फर्क होता है शिकायत लगाने से और शिकायती होने से। Amen? When a person becomes a grumbler, जब एक व्यक्ति शिकायती बन जाता है, they are anointed by Satan for this call. तो शैतान की ओर से अभिषिक्त हैं वो इस बुलाहट के लिए। They can go everywhere and just grumble. वो सब जगह जा करके शिकायत लगा सकते हैं। Are you guys with me? आप मेरे साथ हैं? But what if, see, the truth is parallel. ये जो सच है बराबर चलते हैं। If from grumbling a person can become a grumbler, then if you start to praise God and thank Him, and if you stay there for a minute, it is going to affect your mood. If you're feeling down and you start to praise God, it will affect your mood and you'll start feeling joy. But if you stay there, it is going to become your temperament. But if you stay there, it is going to become your nature. You will become a man who is a praiser. You will praise God in every situation. लेकिन ये सच जो है इसका दोहरा पहलू भी है। अगर आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो उसका असर आपके मूड पर पड़ेगा, आपका मूड बेहतर हो जाएगा। कई दिनों तक धन्यवाद देते रहेंगे तो आपके चरित्र पर उसका असर पड़ेगा, लेकिन अगर उसको अपनी आदत बना डाला तो आप एक धन्यवादित व्यक्ति बन जाएंगे। Amen. So when your AC doesn't work, जब एसी काम नहीं करता, you lift your hands and praise अपने Him. हाथ उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं। When your AC makes the room super cold, जब आपका एसी कमरे को जमा देता है, you're going to lift your hands and अपने worship. हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद देंगे। Amen. आमेन। When your finances are here, जब आपकी अर्थव्यवस्था यहाँ पर है, you'll praise Him. प्रभु का धन्यवाद When your देंगे। finances are here, जब अर्थव्यवस्था यहाँ पर you है, praise Him. उसका धन्यवाद देंगे। Why? Because it क्यों? has become your nature. क्योंकि ये आपका स्वभाव है। Amen. Becomes your nature. वो आपका स्वभाव बन जाता है। Can I tell you a powerful truth? एक शक्तिशाली हकीकत बताता हूँ। What did we learn right now? हमने Can क्या we सीखा? limit God? क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Now hear this. Are you ready? ध्यान से सुनना, तैयार हैं? If we can limit God, then we can limit Satan. अगर हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं तो हम शैतान को भी सीमित कर सकते हैं। Come on. Oh, Pastor Satan. अरे पास्टर जी, शैतान ने। So if we flip this verse, अगर हमने इस आयत को उल्टा कर दिया it would be तो उसका मतलब होगा for us people of faith. हमारे लिए, विश्वास के लोगों के लिए, Again and again they limited Satan, preventing him from cursing them. बार बार वो शैतान को सीमित करते गए, उसको रोकते गए कि वो उनके जीवन में कोई श्राप ला सके। Again and again they limited Satan, preventing him from hurting them. बार बार वो शैतान को सीमित करते गए, उसको सीमित करते गए कि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके।
Can you understand how much power God has given us? क्या आप समझते हैं कितनी ज्यादा शक्ति परमेश्वर ने आपको दी है? You can limit God. आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हो And you can limit Satan. और आप शैतान को भी सीमित कर सकते हो। What happens when you limit God? क्या होता है जब आप परमेश्वर को सीमित करते हैं? Man, Satan is free to steal, to kill and to destroy. शैतान को खुली छूट मिल जाती है चोरी, हत्या और नाश But करने what की। happens when you limit Satan? लेकिन क्या होता है जब आप शैतान को पूरी तरह सीमित कर देते हैं? You're going to walk in blessing. आप You're आशीषों going में to जिएंगे, prosper. You're going to समृद्ध grow. होंगे, Your बढ़ेंगे, children will prosper. आपके बच्चे समृद्ध होंगे। Why? कैसे? क्यों? Because you have limited Satan. क्योंकि आपने शैतान को सीमित कर दिया। Can we limit Satan? क्या हम शैतान को रोक Hear सकते हैं? this. सुनना, If they limited God with their grumblings, then we can limit Satan with our praises. अगर उन्होंने परमेश्वर को रोक दिया, सीमित कर दिया अपनी शिकायतों के कारण, तो हम शैतान को रोक सकते हैं अपनी धन्यवादिता और उस धन्यवादित हृदय के कारण। Satan hates when we bless God and when we are thankful and we rejoice in His goodness. शैतान को नफरत है जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसके कारण आनंदित होकर उसको आशीष देते हैं और वो आनंदित होता है हमें। If you remember last Sunday, अगर आपको याद है पिछला संडे I told you, मैंने बताया था, when the enemy comes against you, जब दुश्मन आपके विरोध में आता है, tell Satan, शैतान को कह दो, sit down, बैठ जा watch me praise my heavenly Father. और देख मुझे कैसे मैं अपने स्वर्गीय पिता की आराधना करता हूँ। Watch me praise my heavenly Father. देख मुझे कैसे मैं अपने स्वर्गीय पिता की You आराधना करता think हूँ। तुझे लगता है I am going to complain and grumble? कि मैं शिकायतें लगाऊंगा, कुड़कुड़ाऊंगा? But the more pressure you bring in my life, the more praise will come out of my mouth. पर जितना दबाव मेरी जिंदगी पर तू डालने की कोशिश करेगा, उतनी धन्यवादिता मेरी जिंदगी से उठ खड़ी होगी। Amen. Not because I'm trying to earn anything from God, but because that's my nature. इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से कुछ कमाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। Amen. That's our nature. ये हमारा स्वभाव है। Wow. What would happen if we really live by this principle क्या होगा अगर इस सिद्धांत के द्वारा हम जीने लग गए and we watch our mouth? और अपने मुंह पर पहरा रखने लग गए? You know, Bible tells a story about a high priest, Bible Zacharias. बाइबल हमें कहानी बताती है एक महायाजक के बारे में जिसका नाम जकरिया था। And it was his time to burn incense in the temple. और उसका समय था परमेश्वर के सामने वो जलती हुई भेंट लेकर के जाने An का। angel stands before him और एक स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा होता है and said, "Your prayers have been heard. और कहता है तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई You're हैं, going to have a son." तुझे बेटा होगा। This fellow says, और ये व्यक्ति कहते हैं, "How can I know what you're saying is true?" मैं कैसे मान लूं जो आप कह रहे हो वो सच है? And the angel says, और स्वर्गदूत कहता है, "I am Gabriel. मैं जिब्राइल हूँ, गैब्रिएल हूँ, I stand before the presence of the Lord. जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। And because you have not believed my words, और क्योंकि तूने मेरे वचनों को नहीं माना, you will be mute for a season." तू एक समय तक बहरा रहेगा, गूंगा रहेगा। What happened? क्या हुआ? He doubted the integrity of God's word. उसने परमेश्वर के वचन की ईमानदारी पर शक किया। Many times we don't get a miracle because we doubt the integrity of God's word. कई बार हम अपने चमत्कार को इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की खराई पर सवाल उठाते हैं। See, many times when we talk about the work of faith, people always think the work of faith means I need to pray for 8 hours. The works of faith is simple. It's just speaking what you believe. कई बार हम विश्वास के कामों की बात करते हैं और लोगों को लगता है कि मुझे प्रार्थना करनी होगी, 8 घंटे कुछ करना होगा विश्वास रखने के लिए, लेकिन साधारण है विश्वास का काम, वो उन बातों को बोलना है जिनको आप सच में मानते हो। Amen. God knows. See, God has set some spiritual laws and we cannot violate them. परमेश्वर ने कुछ अलौकिक नियम कानून ठहराए हैं जिनके विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते। So God knew that I want to give a son to this couple, but I need to
put a watch on this guy's mouth. परमेश्वर को पता था कि मैं चाहता हूं कि इस पति पत्नी को बेटा पैदा हो, लेकिन उसके लिए इनके मुंह पर ताला लगाना पड़ेगा। And you know, और आप जानते हैं Zacharias was mute until John was born. जकरिया तब तक नहीं बोल सका जब तक उसका बेटा यूहन्ना पैदा नहीं हो गया। Many times in this waiting time, when you have prayed, believed until you get your miracle, if you cannot speak what God says, it's better. कई बार इस इंतजार के समय में जब आप विश्वास करते हैं, किसी बात की घोषणा करते हैं और तब तक जब तक उसका परिणाम देखते हैं, इसके बीच में अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते तो बेहतर है कि अपने मुंह पर ताला लगाएं। Amen? Amen. Because many times we speak contrary क्योंकि to what we have prayed. कई बार हम विपरीत बोलते हैं जो हमने प्रार्थना की उसके। But doctors are saying, लेकिन डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं, but the reports say, लेकिन रिपोर्ट तो ये कह रही है। you know, that's what Zacharias said. He said, man, angel, that's right, but we are old. How is that possible? यही तो जकरिया कह रहा था कि हाँ स्वर्गदूत अच्छी बात है, लेकिन कैसे होगा, हम तो बूढ़े हैं। As if the angel was, oh, I'm sorry, I forgot you. So जैसे कि स्वर्गदूत हैरान हो गया, अच्छा मुझे याद ही नहीं था, सॉरी। Oh, I thought you were a young मुझे couple. लगा आप लोग जवान हो दोनों। When a message is given to you, receive it. जब एक संदेश आपको दिया जाए परमेश्वर के वचन का तो उसको ग्रहण करें। Say amen. बोले आमेन। You know, let me tell you a beautiful revelation. मैं खूबसूरत Do you know what प्रकाश बताऊं। amen means in Hebrew? आप जानते हैं इब्रानी में आमीन का अर्थ क्या See, है? in Greek, यूनानी में the word for faith is pistis. विश्वास का जो शब्द है वो है पिस्टिस। But do you know what is the meaning of faith in Hebrew? लेकिन विश्वास का इब्रानी What is में the क्या अर्थ word? है? वो वचन क्या है? Amen. आमीन। Let me tell you another passage. एक और आयत दिखाना चाहता Go to Luke हूँ। 1:37. Now the same angel goes to Mary. अब वही स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है। Same angel, Gabriel. वही स्वर्गदूत गैब्रियल। And he tells Mary, who is a virgin, that you're going to have a son. और वो मरियम से जो कि एक कुंवारी है उससे कहता है कि तुझे बेटा होगा। Now read this. अभी सुनो। And this angel is saying this, okay? और ये स्वर्गदूत कह रहा है For with God nothing will be impossible. क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। But many times what do we say? हम क्या कहते हैं कई बार? But हाँ लेकिन you need to hear my part of story. मेरी कहानी तो सुन लो। When the word is released जब वचन भेजा जाए and you agree, और आप उसके साथ your सहमत हो जाए part of the story is going to change. तो आपके हिस्से की कहानी बदल जाएगी। So angel is saying, for with God nothing is impossible. स्वर्गदूत ये कहता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। Let's hear what Mary says. हम देखते हैं मरियम क्या कहती हैं। Then Mary said, तब मरियम ने कहा, behold the maid servant of the Lord. देख मेरे प्रभु की दासी हूँ। मैं What is she प्रभु की saying? दासी हूँ। She's like, I'm a servant of God. वो कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ। If a word is released, अगर वचन दिया गया I receive it. मैं उसे ग्रहण करती हूँ। You know, when you tell anything to your servant, they don't say, but जब आप can अपने you in this place? जब आप अपने नौकर से कहेंगे साफ कर दो जगह तो वो नहीं कहते, लेकिन Not that God wants us to be servants. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नौकर की तरह हो। What I'm saying, when we carry that servanthood in our heart, when the word is released, we honor the word, we receive it. लेकिन जब हमारा दिल उस तरह से परमेश्वर की बातों को ग्रहण करे कि जो वो कहता है मैं उसको ग्रहण कर लूंगा। Behold, the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। When you say amen, जब आप that's what it आमेन कहते means. हैं, जब आप आमेन कहते हैं तो उसका ये अर्थ होता है। Sometimes people just sit when the word is released, you know, it's like God wants to heal you. And we're like, कई बार जब वचन भेजा जाता है परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है तो लोग ऐसे बैठे हैं, पता नहीं क्या बोला है इन्होंने। and after that say, Pastor, keep your hand on my head. फिर कहते हैं अरे पास्टर, Say amen when the word is released. फिर बाद में आते हैं कि पास्टर मेरे सर पे अपना हाथ रख दो। अरे आमेन बोलो तब जब वचन बोला जा रहा है। Mary didn't say after she said, oh, angel. मरियम ने स्वर्गदूत को नहीं कहा अरे मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो, थोड़ी सी प्रार्थना कर दो। The power is in the spoken word.
बोला हुआ वचन शक्तिशाली Did है. you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने The कहा? power is in the spoken word. बोला हुआ वचन शक्तिशाली And है. that's the attitude that God wants in his children. और ये वो मानसिकता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे रखें. So when you hear the word that is being preached, तो जब आप वो वचन सुने जो प्रचार किया जाता है, when you hear that God wants to heal you, God wants to deliver you, God wants to prosper you, all you have to do is you have to say amen. जब ये सुनते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको समृद्ध करना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, तो कहें आमेन. Amen. आमेन. Let it be to me according to your word. मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार ही हो. Because heaven and earth shall pass away, but not even a dot of your word will pass. क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी चले जाएंगे लेकिन तेरे वचन का एक बिंदु भी नहीं हटेगा. Amen. See, Mary couldn't comprehend how it will happen. मरियम इस बात को समा न सके अपनी बुद्धि के अनुसार Mary कि didn't कैसे say to होगा. angel, no, you have to explain the biology to me. मरियम ने ये नहीं कहा कि इसकी बायोलॉजी मुझे सिखाओ पहले. Where will I get the chromosomes? No, it doesn't matter. कहाँ When से the होगा? word is released, you believe it, say amen. It's God's part to bring it to pass. कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो आपकी नौकरी नहीं है. आपका काम है आमेन बोलना, ऐसा ही हो बोलना, और जब वचन भेजा गया तो वो पूरा होगा. Amen. That's why Abraham is called the father of our faith. इसीलिए अब्राहम को हमारे विश्वास का पिता कहा गया है. Who believed against hope. जिसने आशा के विरोध जा करके विश्वास किया. He did not let his faith be weakened considering his own body, but was strengthened in faith, giving glory to God. अपने विश्वास को कमजोर ना पड़ने दिया अपनी शारीरिक दशा को देख करके, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मजबूत होता चला गया उस विश्वास में. Being fully assured इस बात में पूरी तरह संतुष्ट होकर that he who has promised is well able to fulfill it. कि वो जिसने वायदा किया है क्षमता रखता है, पूरी क्षमता रखता है उसको पूरा करने का. Amen. So I want to tell you, तो मैं आपको बताना if चाहता you're हूँ, here अगर आप with a यहाँ हैं, physical ailment, अगर if you're here with a mental ailment, किसी तरह की शारीरिक you बीमारी, will be healed today in Jesus' name. अगर आप में से कोई भी यहाँ किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी के साथ हैं, तो आप आज चंगे किए जाते हैं. Amen. What if we can have the same attitude? Lord, let it be done to me according to your word. क्या होगा अगर हमारी भी यही मानसिकता हो कि प्रभु मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार ही हो. Revelation 3:14. प्रकाशित वाक्य 3 उसका 14. That's why saying amen is powerful. इसीलिए मैं कह रहा हूँ आमेन कहना शक्तिशाली है. In fact, how many people know Jesus is called the amen? यहाँ तक कि कितने लोग जानते हैं यीशु को आमीन कहा गया. Let's see the scripture. Revelation 3:14. And to the angel of the church or Laodiceans write, these things says the amen. लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो आमीन और विश्वास योग्य है. He's the amen. वो यीशु आमीन है. Whether the word makes sense or not, चाहे वचन बुद्धि में जाए चाहे ना जाए, it will fulfill for which it was sent. लेकिन जिस कारण वो भेजा गया वो See, पूरा होगा. when angels spoke this word to Mary, जब स्वर्गदूत ने ये बात मरियम से कही, it made no sense to her mind. तो उसके दिमाग को ये बात समझ में नहीं आई. But still she conceived. लेकिन फिर भी वो गर्भवती हो गई. You don't have to understand everything that God is saying. जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है उसको समझने की If जरूरत a नहीं word है. is released, अगर वचन भेजा गया है you don't have to know how it will happen. तो समझने की जरूरत नहीं है कैसे होगा. If God says it, अगर परमेश्वर कहता है you say amen. तो आप कहते हैं आमेन. I believe it. मैं विश्वास करता हूँ. My faith is not in me. मेरा विश्वास मेरे ऊपर नहीं, My faith is in the one who promised me. मेरा भरोसा उस पर है जिसने वादा किया. And the one who promised me और जिसने is वादा किया, well able to perform it. जिसने वादा किया वो उस वादे को पूरा करने के लिए योग्य है. Amen. Something like Amen. Can we say amen? क्या हम आमेन कह सकते हैं? I want to declare that you and your children will live.
मैं ये घोषणा करता हूँ कि आप और आपके बच्चे जिएंगे। Amen. You and your generations will live. आप और आपकी पीढ़ियां जिएंगी। Amen. As for me and my household, and as for you and your household, we shall serve the Lord. मैं और मेरा घराना, आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। We will see this nation bowing its knee before Lord Jesus Christ of Nazareth. हम इस देश को यीशु नासरी के आगे घुटने टेकते हुए देखेंगे। When every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord of India. जहां हर एक घुटना टेके और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही भारत देश का प्रभु है। Amen. An army is rising. एक सेना उठ खड़ी हो रही है। Amen. How will that happen, Pastor? पास ये कैसे होगा? I don't know. मुझे नहीं पता, I'm clueless. मुझे कोई अंदाजा नहीं है, But the word says, लेकिन वचन कहता है when the Son of Man is lifted up, जब he will मनुष्य- draw all men to himself. जब मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाता है तो वो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित The कर देता है। more we lift Jesus, the जितना ज़्यादा हम more he यीशु will को draw उठाते हैं, people to himself. उतना ज्यादा वो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। Amen. If we understand, grace is so beautiful. अगर हम समझें तो अनुग्रह बहुत खूबसूरत है। What do we have to do? We just have to say what God says. हमें क्या करना है? बस वो करना है जो परमेश्वर कहता है। I create the fruit of lips. मैं होठों के फलों का सृजनहार हूँ। I create the fruit of lips. मैं होठों के फलों को बनाता हूँ। So when you are in process to receive your miracle, to possess your miracle, don't speak contrary to what you are believing for. जब आप उस इंतजार में हैं, जब अपने चमत्कार को ग्रहण करना है, तो जो प्रार्थना, जो विश्वास करके बोलते आए हो, उसके विरोध बोलना बंद करो, मत बोलो। Speak the word. वचन को बोलो, Speak the word. वचन को बोलो। You know, Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यिर्मयाह 1:12 वचन कहता है, मैं अपने वचन को ध्यान धरकर देखता हूं उसको पूरा करने के लिए। I watch over my word to perform it. परमेश्वर कहता है मेरी निगाहें मेरे वचन पर लगी रहती हैं उसको पूरा करने के लिए। You know, sometimes it's so easy because we are all surrounded by negative people, negative reports. You go to your office, everybody is talking negative. कई बार बहुत आसान है ऐसा, क्योंकि आप दफ्तर में जाएं, हर कोई नकारात्मक बात कर रहा है, नकारात्मक खबरें हैं हर तरफ। You know, when we started this ministry, जब ये सेविका हमने शुरू की थी, everybody said, हर एक व्यक्ति ने कहा Delhi is what? Valley of dry bones? Valley of dry bones. दिल्ली तो सूखी हुई हड्डियों का शहर है। Who are you? कौन हो तुम? Hard ground. कठोर भूमि है दिल्ली। And we started confessing, और हमने एक घोषणा करना शुरू कर दिया, Father, पिता it's easy. ये आसान It's है। easy to do ministry in Delhi. दिल्ली में सेवकाई करना आसान है। It's easy. आसान है। Amen. आमीन। You know why it's easy? पता है क्यों आसान है? Because Jesus never said, you build my church. He said, I will build my church. क्योंकि यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरी कलीसिया को बनाना, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करता हूँ। So all that we have to do is हमें क्या करना है? get out of the way रास्ते से हट जाना है and say, Lord, build it. और बोलना है प्रभु आप बना लो। Sometimes we are on the way. कई बार हम रास्ते में खड़े होते हैं। Jesus, you want to build it? यीशु बनाना चाहते हो? Okay, let me ठीक है। tell you the terms and conditions. मैं आपको okay? बताता हूँ कैसे बनानी है। We don't pray in spirit in this. हम आत्मा में प्रार्थना नहीं Don't believe in करेंगे। miracles. हम विश्वास नहीं मानते, चमत्कार नहीं मानते। You have 5 minutes to do what you want. यीशु 5 मिनट देंगे आपको, जो करना है कर लो। No, he नहीं। said, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को उठाकर खड़ा करता हूँ। This is his church. ये उसकी कलीसिया है And he is building his church. और वो अपनी कलीसिया को बना रहा है। Amen. आमीन। And you know what we do? और आप जानते हैं हम क्या करते हैं? Okay, Sam, come here. Me and Sam, you know what we've been doing for last 12 years? हम जाते पिछले 12 साल से क्या करते आए हैं? We watch him build the church.
हम उसको देखते आए कि वो कलीसिया कैसे बना रहा है And we give him glory. और उसकी महिमा करते Because हैं he is building his church. क्योंकि वो कलीसिया को बना रहा है. Some people have asked me, Pastor, how much you fast for the church? कुछ लोग कहते हैं पास्टर कितना उपवास करते हो आप कलीसिया के लिए? I said, I don't fast for church. मैंने कहा मैं कलीसिया के लिए उपवास नहीं करता. Whoa, some religious people are so कुछ कुछ धार्मिक लोग बहुत नाराज हो जाते हैं ऐसी बात पे. I fast so that I can be sensitive to hear his voice, but I don't fast to earn, oh, I'm going to fast 40 days so more people. No. Jesus is building his church. मैं उपवास इसलिए करता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए और संवेदनशील हो जाऊं, लेकिन कलीसिया को बनाना है इसलिए 40 दिन उपवास करूंगा. मेरा काम नहीं है, वो यीशु बना रहा है अपनी कलीसिया I को. don't pay so that, the church will grow. मैं इसलिए नहीं देता कि कलीसिया बढ़े. We trust his word. हम उसके वचन का And भरोसा we करते lift Jesus up. हैं और यीशु को ऊंचा उठाते And हैं. he said, when the Son of Man is lifted up, और उसने कहा जब मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाएगा I will draw all men to myself. तो वो सब मनुष्य को अपनी ओर खींच लेगा. Amen? Amen. Many times, me and Sam, I'm just telling you, being vulnerable, okay? कई बार Behind the scene talks. मैं पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं वो बता रहा हूँ. One day we both were talking. एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे. यार ये मजाक में क्या हो गया? I'm telling you the truth. We were having fun. मैं सच कह रहा हूँ हम तो मजे कर रहे थे. We never wanted to start a ministry at church. We were a few young people. We were loving one another, worshiping Jesus, and just having fun. हम कोई सेवकाई नहीं करना चाहते थे. कुछ जवान लोग थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यीशु की सेवा करना चाहते थे, आराधना कर रहे थे साथ मिलके. We were having a party. और एक पार्टी हो रही थी. And people started to join the party. और लोग पार्टी में आने लग गए. And they kept joining the party. और आते रहे पार्टी में. And you have joined the party. और आपने भी पार्टी में ज्वाइन कर लिया. Amen. Amen. So welcome to the party. तो पार्टी में आपका स्वागत है. Amen. Amen. Welcome to the family of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के परिवार में आपका स्वागत है. This is his family. ये उसका परिवार है. Hallelujah. Say it's easy. बोले आसान है. It's easy to get healed. Say it's easy to get healed. आसान है बीमारियों से चंगा होना. It's easy to talk during a sermon. आसान है प्रचार के समय में बात करना वापस. Say it's easy. बोले आसान है. It's easy to get healed. आसान है चंगा होना. It's easy to grow in the Lord. आसान है प्रभु में बढ़ना. It's easy to walk in signs and wonders. आसान है चिन्ह चमत्कार में जीना. It's easy to prosper. आसान है समृद्ध होना. It's easy. आसान है. Come on. Thank you. Amen. You know what Jesus said to Pharisees? पता है यीशु ने फरीसियों को क्या कहा? He said, "Woe unto you, hypocrites, यीशु ने बोला हाय है तुम पर ढोंगियों, because you have made the way of kingdom so hard. क्योंकि तुमने राज्य का मार्ग इतना कठिन बना दिया. You keep adding these requirements on people, तुम ये आवश्यकताएं जोड़ते चले जाते हो, लोगों के ऊपर लादते चले जाते which you yourself don't follow. हो, जो तुम खुद भी नहीं करते हो. It's easy. आसान है. It's easy. आसान है. Last Sunday we learned पिछले रविवार हमने God सीखा has sent His word, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है. and our part is to receive the word. हमारी नौकरी उसको ग्रहण कर लेना. Amen. आमेन. And say thank you, Papa. और कहना धन्यवाद पिता. It's easy. आसान है. It's easy. It's easy. आसान है. And I want to tell you what you're seeing right now. It's just, we have not even scratched the surface. और मैं आपको अभी भी बताना, जो आप देख रहे हो अभी हमने सतह की परत कुरेदी भी नहीं है. You know this, I want to, can I tell you? Can I tell you something? Okay. So very soon, बहुत जल्द we are leaving this place. हम इस जगह से बाहर जाने वाले हैं. Amen. आमेन. We have found a 2-acre land. हमें एक 2 एकड़ भूमि मिली है. We are moving in a 5 times bigger place. इससे 5 गुना बड़ी जगह पर जाना चाहते हैं.
Amen. आमेन। The Lord is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। The Lord has been so good to us. परमेश्वर इतना भला व्यवहार करता है हमारे साथ। We can take credit of nothing what God has done here. हम किसी बात का श्रेय ले ही नहीं सकते जो परमेश्वर ने किया है यहाँ पे। It's Him. लेकिन वो है जिसने It's His किया। good. You know, I've told you so many times, and it's a fact. Me and Monu, many times we just cry. मैंने आपको बताया कई बार पास्टर उनकी पत्नी पास्टर मोनिका ये रोते हैं साथ मिल करके, Just remembering where we came from, याद करते हुए कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। and we just say, Daddy, why are you so good to us? और ये कहते हैं कि पिता क्यों हैं आप इतने भले हमारे साथ। We've done nothing to earn it, but the reality is you cannot earn it. It's so expensive. No man can earn it. हमने कुछ नहीं किया इस भलाई को कमाने के लिए अपने जीवन के लिए, और असलियत तो यह है कि वो भलाई इतनी महंगी है कि कोई मनुष्य उसे कमा ही नहीं सकता। All we have to do is camp in the goodness of God. हमने बस ये किया कि उसकी भलाई में अपने तंबू को गाड़ के बैठ गए। Isn't that beautiful? David did it so beautifully. बहुत खूबसूरती से दाऊद ने लिखा इसको। You know, David got it. दाऊद को समझ में आ गया था। Even he was in the midst of valley of death. जब वो But look at his confessions. मृत्यु की परछाई की वादी में से भी वो कहता है इस बात को, He camped in the goodness of God. क्योंकि वो परमेश्वर की भलाई में अपना तंबू गाड़ना सीख गया था। He's like, surely goodness and mercy will follow me all the days. Not some days, all the days of my life. और वो कहता है निश्चय ही करुणा और भलाई कुछ दिन नहीं जीवन भर मेरे साथ साथ चलेंगी। David was aware that wherever he goes, goodness and mercy follow him. दाऊद इस बात का गवाह था कि जहां कहीं वो गया परमेश्वर की भलाई और करुणा उसके साथ साथ। And so many believers today, they बहुत से say, विश्वासी Pastor, कहते पास्टर, काला साया पीछे कर रहा था मैं. there is a dark shadow behind me. I'm not exaggerating. I was talking to a woman and she's like, Pastor, whenever I'm asleep, there is a black shadow and he looks at me like this. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक स्त्री ने आके बोला कि जब मैं सोती हूँ तो मैं देखती हूँ एक काला साया है जो मुझे ऐसे घूर रहा होता है। What are you aware of? आपका ध्यान किस बात पर लगा है? Are we aware of demonic क्या हम दुष्ट की ओर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं? and the power of Satan? शैतान कितना शक्तिशाली है इस बात Or are we aware of our Father? या हमारा ध्यान इस बात पर है कि हमारा पिता कितना शक्तिशाली है? Amen? Amen. God is much more powerful to protect you. His ability to protect you is much more than Satan's ability to harm you. परमेश्वर कई ज्यादा शक्तिशाली है। परमेश्वर को कि आपको बचाए रखने की जो क्षमता है वो कोसों बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है शैतान की आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता से। Can I say this? Somehow पता नहीं कैसे we trust in the power of Satan more. And I'll tell you why. हम शैतान की शक्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ। If any of your kid, they start watching Harry Potter. आप में से किसी का बच्चा अगर हैरी पॉटर देखना शुरू करे, Oh, again, religious? Okay. वो So they're like watching. What are you doing? You'll be demonized. और उनसे छीन लेते हैं, क्या कर रहे हो, दुष्ट आत्मा घुस जाएगी तुम्हारे अंदर। Is that true or not? Guys, होता है नहीं होता है? we believe we can watch something demonic and instantly demonic world will respond. And we think you're going to watch a Sunday live service for 3 hours and nothing will happen. हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ शैतानी देखेंगे तो जल्दी से जो शैतान की शक्तियाँ हमारे पीछे पड़ जाएंगी, लेकिन आपको लगता है कि आप 3 घंटे की लाइव सर्विस देखेंगे ना, कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगी, फिर बंद कर देंगे। Isn't that true? We are so casual when we see the work of the Lord, when you hear a worship song. But when any person is watching somebody, look, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं या हम किसी आराधना के गाने को हम सुनते हैं तो उसको बहुत हल्का समझते हैं, लेकिन कोई ऐसी उल्टा पुल्टा वीडियो तो हम बहुत डर जाते हैं। when anybody conjures or invokes a demonic world, the spirits come from far. When we worship our Father, He lives in us. जब कोई दुष्ट की ताकतों की ओर अपना ध्यान लगाता है तो बहुत दूर से उनको आना होता है, लेकिन जो हमारा पिता है वो हमारे अंदर रह रहा है। What if we can pray with believing that,
every time I call to the Lord, He hears me. क्या and He होगा responds. क्या होगा अगर हम प्रार्थना ऐसे करने लगे कि जब कभी मैं उसको पुकारता हूँ वो सुनता है और जवाब देता है? Amen. मैन, Every time you call His name, Jesus, जब कभी हम यीशु के नाम को पुकारें and He has all your awareness. और आपका पूरा ध्यान उस पर लगाओ, And He's there, तो वहाँ वो listening to मौजूद है। every word you're saying, every thought that is rising in your heart. He knows it. आपके हर एक वचन को वो ध्यान से सुनता है, हर एक विचार को वो ध्यान से देखता है, वो जानता है। Amen. So can we pray with this faith that our God is a prayer answering God, and you don't have to convince Him to heal you, you don't have to convince Him to bless you, you don't have to convince Him to prosper you. तो क्या इस विश्वास के साथ आज से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, वो हमें समृद्ध करना चाहता है और हमें उसको राजी करवाने की आवश्यकता नहीं है उस सब करने के लिए। All you have to do is हमें बस ये करना है just speak what He says about you. कि हम वो कहें जो वो हमारे बारे में कहता है। Amen. You can get up and say, thank you, Father, I am anointed. जब आप उठते हैं तो कहें धन्यवाद पिता कि मैं अभिषिक्त हूँ। Thank you, Father, that I am appointed. धन्यवाद पिता कि मैं चुना गया हूँ। Thank you, Father, that I am called by my one mother's womb. धन्यवाद पिता कि आपने अपनी मेरी माँ के गर्भ से ही मुझे चुन लिया और पुकार लिया, बुला Thank you, लिया। Father, that I am blessed. धन्यवाद पिता कि मैं आशीषित हूँ। What are you doing? क्या कर रहे हैं? Okay, one scripture and then we'll close. एक आयत और फिर हम समाप्त। Philemon 1:6. फिलेमोन 1 उसका 6। Let me read that in Amplified, okay? मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रहा हूँ। I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing. Okay, Sam, say that and I want to say something. मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास की तेरी सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। You don't have to have the accurate knowledge of every evil thing. आपको हर एक बुरी बात की सटीक ज्ञान होना जरूरी नहीं है। Now, some people, there are books wherein there are like 300 names of demons. ऐसी किताबें जहाँ पर 300 नाम लिखे दुष्ट आत्माओं के अलग-अलग। And people are like, oh, I want to be aware of the demonic world. No, no. और लोग कह रहे हैं कि मुझे पता होना चाहिए दुष्ट की दुनिया में क्या होता है। नहीं, So they know all the new every time they invent a new demon, so the name gets added. उनको सारे दुष्ट आत्माओं के नाम पता है। जब कभी एक नई दुष्ट आत्मा का नाम मालूम होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है किताब में, लिस्ट में। We shouldn't be demon conscious. हमें दुष्ट आत्माओं के प्रति संवेदन नहीं, उसका ज्ञान नहीं रखना। We should be conscious of the Holy Spirit who lives in us. लेकिन उस पवित्र आत्मा का मालूम होना चाहिए जो हमारे अंदर रहता है। 1 Corinthians 4:4 says, greater is he, 1 John, greater is he who is in us than he who is in the world. पहला यूहन्ना 4:4 वचन कहता है वो जो मुझ में रहता है शक्तिशाली है उससे जो दुनिया में रहता है। You don't need to count all the names of evil things in the world. जो दुनिया में जो चीजें उनके नाम गिनने की जरूरत नहीं है। Okay, go back to that script. Philemon 1:6. फिलेमोन 1 उसका 6। Your faith becomes effective and it becomes powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. आपका विश्वास करना प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है जब आपको सही मालूम होता है, सही ज्ञान होता है हर उस अच्छी बात का जो आपके अंदर मसीह में आ गई है। Amen. And New King James says that when we acknowledge every good thing. और न्यू किंग जेम्स वर्जन ऐसे कहता है जब हर उस अच्छी बात को जो हमारे अंदर आ गई मसीह में उसको हम मान लेते हैं। You need to acknowledge what Christ has done for you. आपको जान लेना और मान लेना जरूरी है जो मसीह ने आपके अंदर किया है। Amen. The good thing, वो अच्छी चीजें, not the evil. जो बुरा है सब कुछ वो नहीं। One time somebody came to my house and there were like these statues of elephants. एक बार कोई व्यक्ति मेरे घर आए और मेरे घर में छोटे छोटे हाथी की मूर्ति थी, ऐसे हाथी थी। Elephant? बोले हाथी? Man, you're a pastor. You have elephants in your house? आप तो पास्टर हैं, आपके घर में हाथी है? Demons will come. दुष्ट आत्मा आ जाएंगी।
It's crazy how we have believed such things. पागल करने वाली बात है, क्या सब मान बैठे हैं हम लोग. We care so much about external. And yes, there is a truth to it. You shouldn't bring anything demonic in your house. But what I'm saying is, we care so much what is in your physical house, and we don't care what you have stored in your heart. बाहर की दुनिया में अपने आसपास जो कुछ है उसको हम इतना बड़ा मानते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारे दिल के अंदर क्या चलता है. You can remove all the elephants and giraffes and zebras and lions from your house, but God is more interested in removing judgment and criticism and bitterness and pride. Those are the things God wants. सारे हाथी, जानवर, जितने जंगली जानवर है सब घर से निकाल सकते हो, लेकिन आपके दिल में जो कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, परमेश्वर उसको निकालना चाहता है. Amen. I wish I could say it loud enough to the church. Stop demonizing everything. काश कि मैं इस बात को बहुत जोर से कह सकता कलीसिया को कि हर बात में दुष्ट आत्माएं ढूंढना बंद करो. Amen. Stop seeing black shadows. काले साए देखना बंद करो. What? Do you know? क्या आप जानते हैं? That 1/3 of the angels fell. स्वर्ग से 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए. They're working for the demonic. जो दुष्ट के लिए काम करते हैं. But 2/3 are on our side. लेकिन उससे दुगने हमारी ओर हैं. Why do Christians only see demons? Why don't you see your angels? तो विश्वासी लोग दुष्ट आत्माओं को क्यों देखते हैं, अपने स्वर्गदूतों को क्यों नहीं देखते? They are 3 times more than demons. वो तो उससे 2-3 गुना ज्यादा ही हैं. Why don't you say, Pastor, I was going my home and angel was looking at me? ये क्यों नहीं कहते कि पास्टर मैं घर जा रहा था और मेरा स्वर्गदूत मुझे ऐसे देख रहा था? Amen. And the Bible doesn't say that every believer has a demon, but the Bible says every believer has an angel assigned to them by Father. We need to change our mindset. और बाइबल ये कतई नहीं कहती कि हर एक विश्वासी के पास दुष्ट आत्मा है, लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि हर एक विश्वासी को स्वर्गदूत की दिया गया है. So when there is an electricity cut, right, and there is darkness, जब बिजली चली जाए और अंधेरा हो जाए, what are you aware of? आपका ध्यान कहाँ जाता है? Do you see those 2 hands? Ta-da! क्या आपको वो 2 हाथ दिखते हैं? Mommy! At that time, when there is electricity cut, bam, are you aware of Jesus is in this room with me? जैसे ही लाइट जाती है, क्या आपका ध्यान जाता है कि यीशु मेरे साथ है? Amen. Amen. Right? We have to build awareness. हमें इस मानसिकता को बनाना है अपने अंदर. We have to build awareness. हमारा ध्यान उस पर रहे. You know, one time a sister came to me. She said, "Bhaiya, you know what happened?" एक बार एक बहन मेरे पास आई, कहती भैया आपको पता है क्या हुआ? I entered my house मैं अपने घर में गई and somebody turned on the fan. और किसी ने पंखा चालू कर दिया. I was like, why can't that be an angel? मैंने Maybe कहा- you're feeling hot. The angel wanted to turn on the fan for you. मैंने कहा Why वो it always तुम्हारा have to be a demon? मैंने कहा तुम्हारा स्वर्गदूत क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें गर्मी लग रही हो, उसने पंखा चला दिया तुम्हें देख के. तो हमें साई साई क्या हो जाती है? साई साई. वो कहते हैं हमें हवा चलने की साए साए की आवाज आती है. The Bible says God has made His angels winds. Maybe they are doing साई साई. और लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे साए साए हवा की आवाज आ रही है. परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उसने Let's स्वर्गदूतों को, renew our mind. हम अपने मन को नया Let's करें. become more light conscious than we are darkness conscious. हम प्रकाश की ओर अपना ध्यान लगाएं, अंधकार की ओर नहीं. The Bible says angels are ministering spirits given to the heirs of salvation. बाइबल कहती है स्वर्गदूत वो सेवकाई करने वाली आत्माएं हैं जो विश्वास के धारकों को दी गई हैं. Amen. So if you are 4 members in the family, अगर परिवार में 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, there are 4 angels at least. तो कम से कम 4 स्वर्गदूत तो आपके घर में हमेशा रहते हैं. Right? And if you are a family that loves to praise and worship, you know, angels love praise and worship. और अगर आप एक ऐसा परिवार है जो आराधना करने से प्यार करते हैं, क्या आप जानते हैं स्वर्गदूतों को प्यार है आराधना करने से? So they are, you know,
They're going for a job. जब वो कुछ काम के लिए जा रहे होंगे स्वर्गदूत Subhash Nagar. सुभाष नगर के आसपास, And then they hear, और सुनते हैं, मैं हाथ उठा, they'll turn to it. जब वो आराधना सुनते हैं तो वो मुड़ जाते हैं। They love when saints worship. स्वर्गदूतों को प्यार है जब संत मिलकर आराधना करते हैं। Amen. आमेन। We are not seeking angels. हम स्वर्गदूतों को नहीं खोज रहे कहाँ I हैं। just want to turn your attention that stop becoming unconscious. लेकिन मैं आपके ध्यान को सही जगह लाना चाहता हूँ कि दुष्ट की ओर ध्यान लगाना बंद करो। Stop seeing demons everywhere. दुष्ट आत्मा दिखना बंद करो। If you see a demon, अगर दुष्ट आत्मा दिखे, cast it out. उसको खदेड़ निकालो। And again, put your awareness to the फिर Father. वापस अपना ध्यान प्रभु की ओर डालो।